नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। प्रदीप जी। बिल्कुल सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। क्या है? शिंदे सेना ने बीएमसी में जाकर के शिवसेना का के जो ऑफिसेज हैं उनको टेक ओवर कर लिया। यस सर, टेक ओवर कर लिया साहब। उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ से। उसके बाद ऑफ कोर्स दे सील्ड द ऑफिसेज एंड थिंग्स लाइक दैट, बट दे वर एबल टू टेक ओवर। एंड उसके बाद अब जा करके एवरीबॉडी इज टॉन्टिंग एवरीबॉडी एल्स। ये कहा जा रहा है कि भाई अभी नागपुर में है, अभी जनाब शिंदे साहब आरएसएस में शायद वो मीटिंग लिए गए थे, और वहां पर उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि भाई आप जरा केयरफुल रहें, आप जरा ध्यान से रहें, कहीं ऐसा ना हो कि शिंदे साहब आरएसएस के हेडक्वार्टर्स को भी टेक ओवर ना कर लें, ऐसा उन्होंने कहा है। फिलहाल we'll talk about that. We'll talk about Sena versus Sena, which is hotted up again. We will also talk about our efforts to bring some succor to the people and relief to the people of NAGAR 1 in GOREGAON. We'll talk about that too. And of course, we'll also talk about the major problem of eve teasing which is taking place in ASHRAM in Kalina. वहाँ पर illegal immigrants बहुत हैं, कहा जाता है बांग्लादेश से, we're not sure, but the police have said the process of identifying these illegal immigrants has started, and very soon they will all be caught and they will soon be deported. But first, Pradeep ji. बिल्कुल सर। Mr. Shinde, Bala Sahabanchi Shiv Sena, flexing its muscles and showing everybody what they are made of. Pradeep. Sir, in every system there is a conflict between abiding law and arbitrary power. Now here we are talking about arbitrary power. Why do leaders from various political parties, the political leadership होता है, महाराष्ट्र में एक परंपरा हुआ करता था पहले कि political leaders at the top would talk to each other and solve the differences amicably. But this is the first time it is coming straight to the homes कि which party is doing what. Why Eknath Shinde is doing this, why Eknath Shinde has broken away from Uddhav Thackeray and joined Modi group with Fadnavis. So what are we going to do? What are we looking at? We are seeing forceful possession, forceful occupation. We are seeing the rule of law slightly being sidelined by all political parties. The first, now everybody will blame who started the entire thing first. Was it the backstabbing of the BJP by Uddhav Thackeray, or the subsequent breakaway from Uddhav Thackeray by Eknath Shinde and 40? Mind you, sir, Eknath Shinde has nearly virtually taken the entire Shiv Sena along with him. और जिस प्रकार से assembly में उन्होंने कहा कि you don't have the right to take Bala Saheb Thackre's name because you broke away from his tradition of joining the Congress and NCP, which Bala Saheb will never ever think about. So when you broke the tradition, you don't have the right over Bala Saheb Thackre. So everything is with us. And जिसके पास जब एक जो office ले रहे, so we had statements from various BJP leaders and the people who joined the BJP saying that next decision ये होगा कि सेना भवन पे रवि राणा saying that सेना भवन शायद टेक ओवर करने वाले हैं, और फिर वहाँ से संजय राउत, ना भी सभी कभी समझ में नहीं आता संजय राउत किसके पक्ष में है. Does this talking do more damage to the Uddhav Thackeray Sena, or is it for protecting the rights of Uddhav Thackeray Sena? Because he always aggravates the matter beyond repair. और यहाँ पर प्रदीप जी जो आपने कहा, मैं इस पे एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आदरणीय सम्माननीय संजय राउत जी ने जिस प्रकार अपनी पुरानी शैली में बात करनी शुरू कर दी है, जिस प्रकार उन्होंने जान जान के शिंदे सेना को कुरेदना शुरू कर दिया है, छेड़ना शुरू कर दिया है, एक सरल भाषा में, सरल नहीं, जिसको स्ट्रीट की भाषा में, गली की भाषा में, रोड की भाषा में ये कहेंगे, उंगली करना शुरू कर दिया है. शायद ये भी एक वजह है कि शिंदे सेना को ये कदम उठाना पड़ा और उनको दिखाना पड़ा कि हम लोग क्या हैं by taking over the Shiv Sena offices in the BMC. In fact, perhaps Mr. Sanjay Raut is really and truly provoking the Shinde Sena. Meantime, Mr. Uddhav Thackeray had something very interesting to say. When
Mr. Eknath Shinde visited the RSS headquarters at Nagpur, Mr. Uddhav Thackeray said, you better be careful. Tomorrow, he might just encroach upon and take over your entire headquarters. That's what he said. Let's have a listen to what Mr. Uddhav Thackeray had to say. Uddhav Thackeray ji ने क्या कहा सेना वर्सेस सेना को लेकर के, वो तो खैर कहते हैं कि ये मेरी सेना असल में शिवसेना है। एकनाथ शिंदे जैसे अभी अभी प्रदीप जी ने कहा, वो कहते हैं कि हमारी सेना बाला साहब ठाकरे की सेना है, right? Now, I'm sorry, I don't think we can, play that one out for you. Whenever we are able, we should be able to show that for you. But this is when the takeover took place. But Pradeep ji, the fact remains that the offices have now been sealed. So in effect, no one has really got access to those offices. However, that itself is a victory for the Shinde Sena, because you have prevented the Uddhav Thackeray Sena from coming into their own offices. Sir, this has happened in Nagpur, which the winter session is going on. वहाँ पर भी Uddhav Thackeray Sena had to move out of the office. जी. The same thing has happened BMC. BMC, Uddhav Thackeray group had to move the offices after there was the token possession by Eknath Shinde group of the BMC office of Uddhav Thackeray Shiv Sena. Now, you have to take a stand. As we always said, Mr. Uddhav Thackeray has to take a stand whether how he's going to build the Shiv Sena back again. Gee. Because the accusation by Eknath Shinde Sena was that we had to break away because the Shiv Sena Balasaheb ideals were being not followed by Uddhav Thackeray. Uddhav Thackeray was not meeting people for 2.5 years. And the first time we see a Thackeray coming and addressing, Uddhav Thackeray coming and addressing the Vidhan Parishad. We never saw the Shiv Sena Prabhu ever set foot near Mantralaya or come to any of these assemblies or any of the Vidhan Parishad never sessions. Stood for elections. It never stood for elections, never even visited these places, never talked. And he also we have the first time. And he also said very clearly, no Thackeray will stand for elections. And no Thackeray will be a chief minister. No Thackeray will be it's always, and they delighted in having a remote control. Gee. Right from you have been a very close associate where you saw Balasaheb Thackeray run in 1995. Manoj Joshi was being remote controlled. Narayan Rane was being remote controlled. So entire thing you have seen it. But this is the first time, whatever Eknath Shinde has done, you saw the Thackerays, the father and son, coming out in the field and talking to people, coming out in the field and grabbing the bull by its own horns. But that's what they ought to be doing. They are doing it now, and as they say, if they have done it 2.5 years back, probably Eknath Shinde. But probably Eknath Shinde, they'll see, everybody seems to be absolutely ambitious. They are waiting for their turns, they are waiting for the right moment. And his right moment came. There was no doubt that Eknath Shinde is a workaholic. There's no doubt that he works 24/7, 365 days. He's just possessed with the culture of work. So when he found the opportunity that the main person, the chief minister, is bedridden, the chief minister is not functioning, the chief minister not involved in day-to-day administration, he slowly took over the reins, then joined with Amit Shah, Mr. Modi, and then rest is history. And I really don't know if Devendra Fadnavis had an inkling of what was happening. But whatever happened, it happened. And Eknath Shinde जैसे हम लोग बार-बार कहते हैं, कभी इस चीज से रुकता नहीं है बोलने की, मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये बिग थ्री के बारे में हर चीज में बोलते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि महान व्यक्ति है, महान शक्ति है। आज की तारीख में ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब कोई अपना काम कराना होता है बहुत जल्दी, तो सीधा एकनाथ शिंदे को फोन करते हैं सर क्योंकि जहां तक शिंदे साहब का सवाल है, वो मोदी जी का काम अपनी सर आंखों पे रख के सबसे पहले वो काम करते हैं, उसके बाद कुछ और करते हैं. इनफैक्ट मिस्टर शिंदे इज परहैप्स a bigger BJP loyalist than anybody else. So that's where you started from. Mr. Eknath Shinde has his hands on the administration. He knows which button, which pulse to press to get the jobs done. He is sitting on the bureaucrats. He's talking to them. He's making them work. And since he's a workaholic, he's got one person, the Prime Minister, who's absolutely more workaholic. And he wants to put India in development phase, total fast development phase. He wants Maharashtra. Eknath Shinde never stops telling the people and the press conference that Modi ji ने मुझे खुद फोन किया और कहा कि महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पर आपको लेके जाना पड़ेगा. And why shouldn't he grasp this opportunity? Today, he's a workaholic.
He's got Mr. Modi, Amit Shah, the big three, and JP Nadda's absolute support to run this particular government, to do whatever assistance do. He in turn is fulfilling all the objectives of Narendra Modi, the Prime Minister. And as you said at the beginning of the program, him going to RSS headquarters in Nagpur has created a more buzz than ever. That is Mr. Eknath Shinde going to join the BJP? Is he going to contest with the BJP? Is Mr. Shinde joining the RSS? Yes, that is the biggest question. Because Uddhav Thackeray in the Vidhan Parishad, then press talked to him, he said, let Mr. Eknath Shinde give me a word that he will not join the next, he will not join BJP and not fight the election on a BJP ticket. Now things are moving in that particular direction. After Eknath Shinde visiting the RSS headquarters and offering everything that he got, the tributes to in the RSS headquarters. Right. But anyway, it's his choice. Let's be very clear. As far as Mr. Eknath Shinde is concerned, जहाँ तक एकनाथ शिंदे साहब का सवाल है, वो उनकी मर्जी है. अगर आज वो आरएसएस ज्वाइन करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां मर्जी जाना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है. जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनना था, उन्होंने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाई, उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी और समाजवादी पार्टी के साथ युति करी और सरकार 2.5 साल तक चलाई. इसी प्रकार एकनाथ शिंदे जी के ऊपर ये पूरा दारोमदार है कि वो किस जगह जाना चाहते हैं. बट आई कैन टेल यू व्हाट, दिस थिंग विल कंटिन्यू. ये चलने वाला है. इसमें मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है. ये सेना वर्सेस सेना चलेगा और इसी प्रकार चलेगा. राइट, एंड वी शैल कंटिन्यू विद दिस स्टोरी. हाउएवर, लेट्स गो बैक टू आवर ओल्ड स्टोरी. प्रदीप जी. बिल्कुल सर, एब्सोल्यूट. जहां तक गोरेगांव का सवाल है, गोरेगांव के पीछे नया नगर 1, huge slum, the biggest slum in Mumbai after धारावी. धारावी के बाद सबसे बड़ा स्लम कहां का? मुंबई का. और जैसा कि हम लोगों ने आपको दिखाया था, and I'm sure we'll be able to show that to you again very very shortly, जिस प्रकार हम लोगों ने आपको दिखाया था, ये वही स्लम है जहां पर पिछले 40 बरस से बिजली नहीं है. There is no electricity here. There is no electricity here in this slum, which is absolutely terrible. And one of the people who took it upon himself, उन्होंने वो अग्रसर थे यहाँ पर लोगों को आंदोलित करने के लिए, सब कुछ उन लोगों को संगठित करने के लिए, ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द बिजली मिल पाए. वो थे मिस्टर विचारे ऑफ द मदद फाउंडेशन. शायद विचारे साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. विचारे साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी विचारे साहब, नमस्कार. नमस्कार राजू जी. वेलकम टू नेशन नाउ अगेन. वेलकम टू नेशन नाउ अगेन. विचारे साहब, आप आज बताएं कि आज वो हेल्थ कैंप लगने वाला था आज बीएमसी का, क्या हुआ उसमें, क्या किया गया, आपको फिर बाद में जाकर के क्या फॉलोअप करना पड़ा, और बीएमसी की तरफ से आपको क्या वादा मिला है, ये जरा बताएं, विस्तार से बताएं. जरूर राजू जी बोलिए. क्या हुआ कि आज बीएमसी के माध्यम से यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया गया जी, क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ पे साफ सफाई नहीं थी जी. जो आपका जो चैनल है वो जब वहाँ पे आया, उन्होंने सब हाल देखा, उसके बाद बीएमसी ने अपना मूवमेंट चालू किया जी. क्योंकि बीएमसी में ऐसा हो गया है कि यहाँ पे सिर्फ बीजेपी की आवाज चलती है जी. लेकिन आप आने के बाद और हमारे वरिष्ठ जो हमारे सीनियर लीडर है, उनका सोच जाने के बाद मूवमेंट बराबर अभी हो रहा है. पिछले 3 दिन से वहाँ पे साफ सफाई हो रही है जी. लेकिन ऐसा है कि ये कैंप नया नगर वाले लोग के लिए रखा था. हमने उधर नया नगर वाले लोग ने सब जने मिल के वहाँ पे डेकोरेटर्स के थ्रू वहाँ पे एक टेंट भी लगाया. जो डॉक्टर्स को चाहिए था वो सब सुविधा वहाँ पे हमने उपलब्ध कर दी थी. डॉक्टर्स सुबह आए, अपना सब इंस्ट्रूमेंट से लेके मेडिसिन से लेके सब लेके हमारे टेबल पे रख दिया जी. लेकिन कुछ ही समय में कुछ ऐसा बदलाव आया कि सब जन डॉक्टर्स और उनका पूरा टीम उठ के उन लोग बाजू में थोड़ी दूर में एक गणेश मंदिर है वहाँ पे चले गए. अच्छा, एक दिन पहले ऐसे हुआ था कि इसको पॉलिटिकल रूप मत दो जी. तो हमने भी ये किया कि ठीक है, चलो लोगों की सुविधा के लिए कुछ तो हो रहा है जी. इसके लिए मेरी राष्ट्रवादी की कोई टीम वहां पे नहीं गई जी. फिर भी ये कैंप, उनका ऐसा कहना है, कुछ लोगों से मुझे पता चला
कि यहाँ पे इनके ऊपर प्रेशर डाला गया जी इसके वजह से उन्होंने अपना वैल्यू चेंज किया। जी तो मुझे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि ये कैंप लगाया गया था नया नगर के लिए। क्या नया नगर वाले लोग के पास आधार कार्ड नहीं है? क्या नया नगर वाले लोग के पास वोटिंग कार्ड नहीं है? मतलब अभी ऐसा हो गया है कि इनको वहां पे रहना है, इनको कुछ भी बीएमसी के माध्यम से सुविधा मिलनी चाहिए, उसके पहले उनको बीजेपी में प्रवेश करना चाहिए। क्या ये उचित है? जी क्या ये ठीक है? आज उधर इतने सालों से लाइट नहीं है साहब, जी ठीक है। कुछ दिन पहले वो लोग मेरे पास आए, मैंने इनिशिएटिव लिया और मेरे लेवल में जितना हो सक रहा है वो मैं अप्रोच कर रहा हूँ। फिर मैंने वहां पे सर्वे लगाया, सीआरजेड के डिपार्टमेंट और अदानी के डिपार्टमेंट, वहां पे पंचनामा हो गया, वो भी रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा। देखिए साहब, ऐसा है कि ये लैंड जो है ये स्लम डिक्लेयर है। अगर ये लैंड स्लम डिक्लेयर है तो उनको लाइट और पानी ये जो नेसेसिटी है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट, वो तो मिलना चाहिए। करेक्ट। आज गांव खेड़े में लाइट पहुंची, लेकिन मुंबई शहर में साहब गोरेगांव में पिछले कितने साल से लाइट नहीं है। ऑलराइट, एक सेकंड बेचारे साहब, प्रदीप जी हमारे साथ है। प्रदीप जी भी आपको कुछ पूछना चाहेंगे। प्रदीप जी, ये तो बड़ा अजीबोगरीब मसला है। डॉक्टर्स वहां पर आए, इन लोगों ने, बेचारे साहब ने, बाकी सब लोगों ने वहां पे टेंट वगैरह लगा दिया, उनके लिए टेबल लगा दिया, पानी की बॉटल्स भी ले आए, सब कुछ ले आए, और सारी मेडिसिन वगैरह वगैरह, वैक्सीनेशन वगैरह वगैरह, एक एक चीज वो ले आए। और उसके बाद जो भी डॉक्टर वहां पर आए, हमारे डॉक्टर ठाकुर हैं, बाकी सब लोग हैं, उनकी टीम है, उन बेचारों को मैं ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकता। उनके ऊपर बहुत राजनीतिक प्रेशर लगाया गया और यह कहा गया कि यहां से उठ करके किसी भी बहाने से यह कहा गया कि भाई वहां बिजली नहीं है, यह कहा गया कि जमीन बड़ी उबड़ खाबड़ है, और वैसे भी हम लोग गणेश मंदिर के पास का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, तो इसलिए कैंप वहां लगा दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, किसी का तो फायदा हुआ, गणेश मंदिर के आसपास जो लोग रहते हैं उनका तो फायदा हुआ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार बीएमसी ने वहां से कचरा उठाया, जो 5 साल से नहीं उठा था, साफ सफाई वहां पर करी है, वो अभियान जारी रहेगा। और बहुत ही जल्द जैसा कि बीएमसी ने वादा किया है, बहुत ही जल्द नया नगर में भी इसी प्रकार का वो मेडिकल कैंप लगाएंगे। और स्टेप नंबर 3, नया नगर में बहुत ही जल्द बिजली भी आ जाएगी आफ्टर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गिव्स एन एनओसी। प्रदीप जी। सर, मुझे विचारे जी को धन्यवाद भी, द वे ही हैज टेकन अप द इशू, नया नगर वाला इशू विचारे जी ने जिस प्रकार से हाईलाइट किया और हमारे सामने उन चीज को लेके आए। एंड भी जैसे हमारे चैनल की एक पॉलिसी है कि गरीब से गरीब को जहां फायदा मिले, सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते हैं, और आप खुद वहां पर आके हम लोग एक प्रोग्राम किए। मुझे ये जानना चाहिए था कि अभी जो पॉलिटिक्स हो रहा है कि वो पूरे उस क्षेत्र में हेल्थ कैंप न लेके, उस जो ऑर्गेनाइज पहले था कि उस क्षेत्र में होने वाला था, नया नगर में होने वाला था, हेल्थ कैंप को कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये है कि विद्या ठाकुर जी आज के नेता नहीं है, बहुत पुराने नेता हैं जी। तो नया नगर उनके मैप से कैसे निकल गए? क्या नया नगर में कभी उन्होंने काम नहीं, बिकॉज नया नगर 40 साल से बसी है, तो इट इज नॉट दैट ओवरनाइट इट हैज कम अप। Why it has escaped the attention of Vidya Thakur, who's an MLA, and I think she's been MLA for a long time from there. She probably earlier government minister भी थी वो, and Shri Kala Pillai is probably a BJP corporator from there. तो why आपको क्या लगता है विचारे जी, ये क्यों है, ये नया नगर में ये लोग काम क्यों नहीं किए कि आपको लेना पड़ा है? देखो ऐसा है कि हमेशा ये पिछले काफी सालों से होता आ रहा है कि ये बेचारे गरीब लोगों को इलेक्शन के पहले आश्वासन देते हैं जी। और इलेक्शन जीत चुन के आने के बाद 4-4.5 साल कोई उधर भागता भी नहीं। अभी ऐसा है कि देखो यहाँ पे हो सकता है कास्ट की राजनीति हो, ओके, मुझे ऐसा लगता है, इसके वो नहीं कर रहे होंगे। रिलीजन भी हो सकता है, रिलीजन कास्ट, तो मुझे यही पता है कि वो कोई भी जाति धर्म का हो, उनको fundamental rights उनको मिलना चाहिए। Right, now just one second, can we have that Nagar footage on please? Naya Nagar footage on please. This is of course the BMC cleaning up. Can we have the Naya Nagar footage on please? I really would like to know. I really like to remind our viewers exactly what we saw over there. I don't really know why we are not running it. I'm sure we have it. Can we have that on please? This of course is the Ganesh Mandir camp. But let's take a look. Let's take a look also at that footage. जी, विचारे साहब आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। हाँ जी, क्या हुआ
कि जब भी हम लोग बीएमसी में वार्ड ऑफिसर को फोन कर रहे हैं तो वो नॉट रीचेबल थे, और जब भी रिंग बज रहा था उन्होंने फोन उठाने से उन्होंने फोन नहीं उठाया। हम लोग वार्ड ऑफिस में गए और हमने उनको हमारा जो ये था जी, पहले तो हमने पूछा उनको कि भाई ये हमारे ऊपर ये ऐसा अन्याय क्यों। तो उनके जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि मैं आपका मैसेज जरूर मेरे सीनियर ऑफिसर है आपके साथ उन तक पहुंचाऊंगा, आप कैब बाद में लीजिए, मैं उनसे कंसर्न करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साहब ऐसा है कि ये गरीब जनता ने खुद कंट्रीब्यूशन किया और अपने पैसों से, मेहनत के पैसों से उन्होंने वो डेकोरेटर को पैसा दिया, जबकि मैं बोल रहा था कि ये जो भी आपको खर्चा आएगा, टेंट का, चेयर का, जो भी आएगा वो मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ये बेचारे लोग ने अपने कंट्रीब्यूशन से वो खड़ा किया था। आज वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर इन लोग ने कैब लगाया तो हम लोग 1 रुपया देने वाले नहीं, वो पूरा जो बेर करना है वो बीएमसी करेगी। ये ऐसी हालत है, ये ऐसा गुस्सा है उनके दिल में कि मतलब 3 दिन से ये इतना सब जगह पे भाग रहे थे। आज सुबह 6:30-7 बजे से उन्होंने सब तैयारी की, डोर टू डोर जाके लोगों को बोला कि ये बीएमसी के माध्यम से, और न्यूज नेशन और मेरा भी नाम बोला उन्होंने कि अजय जी के माध्यम से क्या हो रहा है। तो फिर ये ऐसा क्या हो गया कि ऑल ऑफ सडन डॉक्टर आ रहे हैं, सब कैंप चालू हो गया। लेकिन डॉक्टर वहां पहुंचे थे क्या विचारे साहब? डॉक्टर पहुंचे थे, डॉक्टर पूछे थे, सब दवाई उन्होंने टेबल्स पे किया था, उनकी तरफ से अरेंज किया था, और बस कुछ ही मिनटों में कैंप चालू होने वाला जी, और उतना ऐसा आ गया। अच्छा, एक दिन पहले हमको ऐसा बोला जाता है कि इसको पॉलिटिकल ये मत करो, ठीक है, ना मैं खुद गया, ना मेरे कोई कार्यकर्ता गए, ना हमारे फ्लैग या कोई बैनर भी नहीं लगे। तो फिर अगर हमने ये आपका जो आपने रिक्वेस्ट किया, हमने उसको फॉलो किया, तो बीजेपी का कैसे वहां पे बैनर लगता है, बीजेपी के लीडर लोग कैसे आते हैं? मतलब इसका मतलब क्या है कि बीएमसी ये इलेक्शन के पहले बीजेपी ये तय कर लिया कि हमारे और जो ऑफिसर्स Pradeep, that's terrible. What we are hearing is absolutely awful. Isn't that right? Sir, क्या आपने abandon कर दिया इन लोगों को? Sir, every MLA, every corporator, every MP, you take an oath that you're going to serve the people, you're going to tell the Constitution, that Constitution, you'll not differentiate in the name of race, caste, religion. तो इस चीज एब्सोल्युटली आप ओथ लेते हो, और उसके बाद ये कैसे आप कर सकते हो कि इस एरिया को नेग्लेक्ट करे या उस एरिया को नेग्लेक्ट करे? तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आर वी गवर्न बाय सिस्टम ऑफ रूल्स? आर वी गोइंग टू फॉरगेट that we are a democratic country, a country that believes in the principles of secularism. It's one of the enshrined in our constitution, which says we the people hereby. तो जिस प्रकार से clearly cut defined है constitution में, जो भी elected आदमी है, elected representative है, वो कास्ट, क्रीड, रिलीजन और कलर के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। जब हमारा प्रधानमंत्री खुद ये कहता है कि देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन ऑन द बेस ऑफ रेस, कास्ट, कलर, रिलीजन, देन व्हाई ऑन द डाउन इन द बॉटम लेवल हम इस चीज को देखते हैं कि इस रिलीजन के लोग हैं तो वहां पर काम नहीं कर। 40 साल से लाइट नहीं है, 40 साल से लाइट नहीं है। हम वहां जाने के बाद बहुत करीबन पिछले 5-6 साल से वहां गार्बेज भी उठा नहीं रहे, और वहां के लोगों से पता चला कि म्युनिसिपैलिटी को यह भी मालूम नहीं था कि रोड है वहां पर है। नहीं, वहां के लोगों से नहीं प्रदीप जी, एक मिनट, वार्ड ऑफिसर साहब ने मुझे खुद कहा, बेचारे जी ये बात तो मैं आपको बताना भूल गया, बेचारे जी जो वार्ड ऑफिसर आकरे साहब है, बड़े बड़े भले आदमी है, वेरी फ्रैंकली ही इज डन अ वेरी गुड जॉब, आई एम श्योर ही विल कंटिन्यू टू कोऑपरेट विद यू। आपके साथ तो जरूर कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया आदमी है, एंड ही इज वेरी वेरी सिंसियर अबाउट हिज जॉब। उन्होंने कहा कि उनके लोगों ने आकर के बताया कि वहां पे एक्सेस रोड नहीं है, बेचारे जी। तो आप उनके होने के बाद, मतलब उन्होंने आपको बोला कि वहां पे एक्सेस नहीं, उसके बाद आप खुद आए, आपको क्या लगा जी वहां पे एक्सेस नहीं? उसके बाद उनको मालूम पड़ा, वो खुद गए वहां पे, तो उनको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ तो आराम से जा सकते हैं जी। देखो ऐसा है कि अभी इससे कौन झूठ बोलता है या क्या है ना, उसमें मुझे बिल्कुल पढ़ना नहीं, सिर्फ मुझे वहां पे एक तो साफ सफाई जो इतने टाइम से रुकी थी वो आपके माध्यम से चालू हुआ है, और लाइट, ये 2 ही इशू जी, तो जल्द से जल्द होना चाहिए। तो अगला स्टेप क्या होगा बेचारे जी, बताएं अगला स्टेप आप क्या करने वाले हैं? हम लोग कुछ ही दिनों में अभी अदानी के ऊपर मोर्चा लेके जाने वाले हैं जी।
लेकिन अडानी जी तो ये कहते हैं, अडानी की तरफ से तो ये इंफॉर्मेशन आई है, ये संकेत आया हमें, बीएमसी वालों ने बताया है कि एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो एनओसी दे दे, क्योंकि एक बार मैं फिर अपने दर्शकों को बता दूं, प्रदीप जी पहले ये बता चुके हैं कि वो कहते हैं कि वो मैंग्रोव्स का इलाका है, लेकिन वहां पर तो कोई मैंग्रोव्स है नहीं, फिलहाल नहीं है, एक 40 या 50 साल पहले होते होंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी एनओसी नहीं दे रही है, तो पहले आपको एनओसी, देयर इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी विचारे जी। नहीं, अभी ऐसा है ना साहब, उन्होंने आपको क्या बोला कि हम रेडी है जी, हमको आप फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट से एनओसी लाओ। जब मैं उनके पास गया तो मुझे क्या बोला कि 50-50 जन का एक ग्रुप बना के बाजू के प्लॉट में आप 3 मीटर हम लोग देंगे और उसका जो बिल आएगा वो 50 में कंट्रीब्यूट होगा। तो ये हमेशा अलग अलग स्टेटमेंट क्यों? वो टाइम पे मुझे क्यों नहीं ऐसे बुलाया गया कि भाई आप फॉरेस्ट से एनओसी लाओ? मतलब ये फुटबॉल हो गया है, राइट। I tell you what, Pradeep ji. बिल्कुल सर। Pradeep ji, I tell you what. Let's take a listen again as to what the people over there have to say. विचारी जी, आप हमारे साथ ही बने रहें। एक बार मैं फिर सुनाना चाहूंगा कि नया नगर के लोगों ने क्या कहा जब हम लोग वहां पर गए थे। एक बार फिर मैं सुनाना चाहूंगा। Let's take a look. Let's take a look what those people had to say. Because do remember, these people are really in trouble. बहुत तकलीफ में हैं ये लोग, बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। पिछले 40 बरस से ये लोग बिना बिजली के रह रहे हैं और पिछले 5 साल से यहां पे कचरा तक नहीं उठाया गया। We were the first people to actually go over there. विचारे जी informed us. He was kind enough to let us know exactly what's happening over there. और उसके बाद थैंक यू वेरी मच मिस्टर इकबाल चहल, आपने इंटरवीन किया, चंद्रशेखर छोरे जी, मिस्टर आकरे, आप सब लोगों ने इनिशिएटिव लेकर के वहां पे कचरा उठाने का अभियान शुरू कर दिया है। बट एज आई सेड अर्लियर, आई होप इट कंटिन्यूज। नाउ आई रियली वुड लाइक टू लिसन टू व्हाट दोस पीपल हैव टू से। कैन वी हैव दैट ऑन प्लीज? दुख दर्द है, किसको बीमारी है, किसको क्या टीबी की बीमारी है, किसको क्या ये है, लाइट की जरूरत तो होना ही पड़ता ना सबको। कैसे कैसे है बताओ? बच्चों को डेंगू हो जा रहा, मलेरिया हो रहा, टाइफाइड हो रहा, एक तो दवा खाना नहीं है, एक तो ये म्युनिसिपैलिटी का कुछ नहीं है, बीमारी इतनी होके जा रही, किसको बताएंगे? गरीब कहाँ जाएंगे बताओ? और लाइट देने के टाइम पे कोई भी नहीं, हम वोट मांगने नहीं है। नहीं, हमको पता है, हमको लाइट की जरूरत है, हमको लाइट की जरूरत है, हमको बिजली की जरूरत है भाई। हमको 2022 में प्रदीप जी, 2022 में यस, मुंबई में बिल्कुल 21वीं सदी में यहाँ पर बिजली नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? बहुत Forget about everything else. 21वीं सदी में 2023 में प्रदीप जी, बिल्कुल सर, absolutely. It reflects on the state, it reflects on the people, especially it reflects on the local leaders. अरे यार शर्म नहीं आती लोगों को क्या? मुझे ये मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, हमारे जितने भी नौकरशाह हैं, हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वहां पर लोग खड़े होके आए हैं। क्या नाम है उनका? अपनी जो श्रीकला पिल्ले, विद्या ठाकुर जी, गजानन कीर्तिकर, हमारे गजानन कीर्तिकर जी। भाई आपको लगता नहीं है कि ये आपकी ड्यूटी है? बेचारे साहब आप बताएं अब आगे क्या? देखो ऐसा है कि मैं तो शांत बैठने वाला नहीं हूँ जी। जल्द ही मैं आंदोलन लूंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे भी और अदानी पे भी जी। सिमल्टेनियसली मैं पीआईएल डाल रहा हूँ हाईकोर्ट में जी। के खिलाफ। तो ये जो मेरा लड़ाई है वो जारी रहेगा जी। और ये आपकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक के लोगों के घर में बिजली नहीं आती। राइट, आई थिंक मिस्टर विचारे, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, सो नाइस ऑफ यू। विचारे साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम लोगों से बात करी। थैंक यू सो मच। वी विश यू ऑल द बेस्ट। देखिए चलते चलते आपसे एक सवाल बच गया। आपको उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो मेडिकल कैंप कब लगा रहे हैं, वो जरा बताएं। अभी वो बोल रहे थे ना कि नया नगर में लगाएंगे। नेक्स्ट वीक का उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट वीक में हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट वीक में जी, नेक्स्ट वीक में ऑन साइट, उसी जगह ऑन साइट। लेकिन मैंने उनको ये भी बोला कि मुझे जो भी आप बोल रहे हो ना ऑन राइटिंग चाहिए जी, क्योंकि ऐसा नहीं वापस से आपको फोन आए जी, वापस से आपने आपको सफल किया, ये सब बार नहीं किए, मुझे ऑन राइटिंग चाहिए। जैसे आपको अदानी वाले ने बोला कि मुझे फॉरेस्ट का परमिशन लाके दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वैसा ये जो आंदोलन कर रहे हैं कि अगर सेम मुझे बोला तो मैं उनको बोलूंगा कि मुझे ऑन राइटिंग चाहिए जी।
राइट, नहीं तो आंदोलन आपके खिलाफ भी जारी वरना हेल्थ कैंप जो है वो वापस प्रदीप जी गणेश मंदिर में शिफ्ट हो जाएगा. Politics, the bane, sir. It's creating problems, hindrances for administration of justice and for the common man. And I think we can let Mr. Vichare go now. Thank you very much, Mr. Vichare. So nice of you, and all the best to you. All the very, very best to you. Right, that was Mr. Vichare. Now let's take a look at the other story that we've been talking about. And I hope, as far as this story is concerned, next week there will be a health camp over there. And I hope the Forest Department gives its NOC. I hope the Adani Group, that is Adani Power, will not have any more excuses left. I'm not blaming them, by the way, to give electricity to these people who are willing to pay you, who are willing to give an affidavit, who are willing to do everything. I hope the Adani Group becomes all right. Sir, if you just remember a few days back, Gautam Adani says that my ambition is to build a fantastic infrastructure for India. Yes. In every section. So I don't think Adani will ever oppose anything in greater betterment of mankind or greater betterment of the poor and downtrodden. As long as they're getting money, as long as they are building infrastructure, why should they ever be bothered about it? And by the way, before we go, we must thank the BMC Commissioner, Mr. Iqbal Chahal again, Mr. Chandrasekhar Chore. We must thank the ward officer and the lady that he reports to, that is the DMC in charge of Zone 7. Mr. Akre, thank you very much. I hope you continue with your good work. मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप वहां का जो कचरा है, इतने सालों का जो कचरा है, वो आप उठाते रहेंगे और हमें एक बार फिर वहां नहीं जाना पड़ेगा दोबारा शो करने के लिए कि भाई यहाँ पे कचरा उठा लीजिए, because this could become an epidemic center. This could really become a center for the spread of disease. I'm not trying to alarm anybody, लेकिन प्रदीप जी, जिस प्रकार अभी कोविड का खतरा वापस आ रहा है, जिस प्रकार ये बात हो रही है कि भाई सब लोग ध्यान से रहें वगैरह वगैरह, that's a very crowded area, number one. Number two, वहां पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब है. They need urgent medical attention. So I hope next week you really will be going over there. But in the meantime, thank you for conducting the medical camp at Ganesh Mandir. उसके लिए भी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. प्रदीप जी, the other story, which is really a very dangerous story. Actually, it's not just a story about eve teasing. Eve teasing की वजह से, लड़कियों को छेड़ने की वजह से ये चीज सामने आई असल में. अगर बिल्कुल. It started from there. Yes, लेकिन वास्तविकता यहाँ पर ये है, there are these illegal immigrants. ये क्या सब लोग illegal immigrant हैं असल में? I really would like to know, because if you remember when we went inside the factory, जहाँ पर वो जो garments factory है, जब प्रदीप जी और मैं अंदर वहाँ पर गए, हम लोग गए वहाँ पे, हमारे साथ जुबैर अंसारी भी थे, senior journalist. We'll have him on in just a little while. He'll be with us. वहाँ पर जब हम लोग अंदर गए, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग जो हैं यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि इनके पास कुछ valid papers है. Can we take a look at that, please? That thing where we went inside the garment factory. Garment factory के अंदर जब हम लोग गए हैं, can we have that on, please? We should have that on in just a minute. We are facing a technical difficulty, but we shall have it on in just a little while for you. When we went inside, yes, sir. Yes, this is the one. This is the one. क्या बात है साहब, क्या बात है, वंडरफुल. चलो जी. एक मिनट बेटे, आप लोग हटें. एक सेकंड प्रदीप जी, एक सेकंड. ये सब लोग, अरे भाई, आप लोगों से ये विनती है, आप लोगों से विनती है, यहाँ से बाहर आकर के महिलाओं को छेड़ने का नहीं, समझ गए? आप लोगों की कंप्लेंट आई है, क्या कहना है इसके बारे में आपको? क्या बोलना है इसके बारे में आपको? आपका सुपरवाइजर कौन है? मैनेजर कौन है? हाँ, आप रहते हैं? अच्छा, आप हैं? अच्छा, आप जरा बताइए कि बाहर आकर के आप लोग महिलाओं को छेड़ते क्यों है भाई? ऐसा नहीं करता. अच्छा, अरे सब लोग बाहर तो बोल रहे हैं, करते हैं आप आइए ना. कौन मैनेजर कौन है आप लोग? मैनेजर नहीं है यहाँ पे. कौन है मैनेजर? सेकंड इंचार्ज कौन है? मैनेजर नहीं तो सुपरवाइजर आप होंगे. आइए. कोई डरिएगा नहीं. बोलिए, अपनी बात रखिए सामने. अपना काम करते रहिए. आप लोग अपना काम करिए.
आप काम करिए, काम करने के लिए आए। I tell you what, I think we missed that out a little bit. You know, But- the gentleman came out बिल्कुल, and yes, he said sir. that we have not done But this these things, kind the of two, thing. three things, आप जिस प्रकार से बोले कि you got a big gala out there where at least 40 to 50 people are working there continuously. 50 लोग 50 लोग से ज्यादा लोग वहाँ पर और उन्होंने ये भी बताया कि वो Yes, वहीं रहते हैं। वहीं रहते हैं और देखो कपड़े सूखा हुआ है. The conditions of work. Now we are talking about many factors out here. It started eve teasing. It started अभी अगर एक छोटे से जगह से 50 से 100 लोग उसमें आप कंप्रेस करके आप काम करा रहे हो और ये लोग क्या करेंगे, वहीं पर रहते हैं, बाहर आएंगे शाम को एंड बाहर निकले तो आप देखोगे 50-60 लोग एक साथ बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, पूरा रोड जैम होता, पूरा लोग और ब्लॉक वैसे भी होते, इतनी तंग गली। रेसिडेंशियल एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम ये तो कैसे आप कंट्रोल कर पाओगे? दिस इज गोइंग टू बी a big issue for the entire Mumbai wherever this kind of garment units are there or illegal migrants coming. There's no doubt that the residential जिस प्रकार से कंप्लेन किया, रेसिडेंट्स ने कंप्लेन किया कि ये जो है बाहर के लोग हैं, ये यहाँ के लोग नहीं है, दे आर माइग्रेंट्स नाउ। वहाँ के रेसिडेंट्स के लोग का एलिगेशन था कि बहुत सारे लोग ये जो है ये बांग्लादेश से हैं। नाउ दिस इज फॉर whom to verify, this has to be verified by the police department कि is there any threat, because if we got around 50 to 100 people in one particular gala और उधर बहुत सारे ऐसे गाले हैं, बहुत सारे ऐसे गाले हैं, तो हर गाले में कितने लोग हैं और रेसिडेंशियल एरिया जो है कलीना, योगीराज आश्रम, वहाँ पर थोड़े रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है बाकी, तो यहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ से जो महिला निकलते हैं उनका कंप्लेन था कि ये लोग चिढ़ाते हैं। Now we are talking about the working conditions also. Can the BMC which inspects these kind of particular department है उनके, लेबर कमिश्नर के पास डिपार्टमेंट है, you got multiple agencies who have to track these kind of No, things. this is most important. The point that Pradeep ji विंडोज made है, just आप now. देखो विंडोज नहीं थे वहां पर, प्रदीप कुछ जी, आउटलेट नहीं था। जी प्रदीप जी एक मिनट, जो आपने अभी बात कही, this is a very very important thing. Are labor laws being followed? Yes, क्या बिल्कुल। लेबर लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है? I tell you what, let's listen in to what these people are saying. Let's take a look again. What are they saying? I really would like to hear it. We should have it. We should have it in just a minute. We should have this on in just a minute. This gentleman is saying, of course, that they are completely and totally innocent. जी इधर बात करो कैमरे पे, जो बोलना है इधर बात करो, ऐसे कॉल करो, आप उसको संभालेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। उनका 3 गाड़ी खुद अपने यहाँ रहता है। घर है, हमारी गाड़ी हमारे घर के बाहर खड़ी है, 3 गाड़ी वहाँ क्या है फिर? लगाओ, हाँ, वहाँ क्या है? हम लोग गाड़ी हमारे घर के बाहर चलने के यहाँ रहता है, वहाँ तो वहाँ रहता है, सब नहीं रहता है, हम लोग को नहीं रहता है। That's right, हमारे घर absolutely. के बाहर हमारी गाड़ी नहीं रहेगी ना। भाई हम लोग दरवाजे पे आके गाड़ी नहीं खड़ेंगे तो किधर खड़ेंगे? दरवाजे पे आके गाड़ी नहीं खड़े करेंगे तो किधर करेंगे हम लोग? दुरुस्त बात है। उधर भी आगे गाड़ियाँ खड़ी है, रहती है, निकलने में हम लोग को तकलीफ होती है। नहीं, जो बाहर से आके लगाना है उनसे प्रॉब्लम है। जो दूसरे से आते हैं और ये ब्लू मून में सब जाते हैं, इधर डिलीवरी बॉयज होते हैं, जब कोई भी होते हैं ना, इधर गाड़ी लगा के जाते हैं और फिर यहाँ चाय पीते हैं। हाँ, इधर बैठे रहते हैं, करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब वो दुकान है वहां पे चाय की, प्रदीप जी, बिल्कुल। जब इन लोगों की शिफ्ट खत्म होती है यही सब लोग बाहर आ जाते हैं। अब 50 के 60 के 100 लोग Yes, इतनी तंग गली में जब बाहर आएंगे, एग्जैक्टली। तो लिहाजा जब महिलाएं वहां से जाएंगी और ये लोग अपने गांव से अलग हैं, जैसा आपने कहा, अंदर बैठे हैं, 18 घंटे इनसे काम कराया जा रहा है और वहीं पर वो लोग सोते हैं, वहीं पर वो लोग जो हैं सब कुछ करते हैं ना। दिस इज obviously something or the other is going to give. Pradeep ji. Sir, this is something that, various angles have to be pursued. One, the labor commissioner has to come and see Yes. the standard of working, is it proper, it's done. कैसे छोटे छोटे गालास में 100 से अधिक लोग एक साथ काम करे, there is no proper ventilation, there is no और 18-17 they saying around 18 hours they are working continuously, they are staying there. Yes. कैसे sanitation है, हर चीज है. Second thing is security aspect. Now जितने residents वहाँ के कहने वाले residents का कहना है कि ये सब विदेशी हैं. These people have come from Bangladesh. Now who is going to ascertain that?
various complaints have been given to the local police station. जी. Now we are in follow-up with the police station. Ki what have you taken? We were talking to the DCP of the BKC concerned area. So he has promised action. The senior inspector has sent the entire group of policemen there to find out what the actual status is. They're examining documents, they're examining various documents which they have. And इस पे चहस चल रहा है, चर्चा चल रहा है, investigation चल रहा है. But we are talking about entire security at that particular area. Overcrowded, manufacturing units, fire hazard. Because if you see this छोटे-छोटे गाले में जिस प्रकार से, it's a fire hazard. Is the fire clearance taken? Is the fire brigade given them a clearance? Now, let me just clarify here, because we're getting a lot of response. People want to know where is this area. This is Yogi Ashram, and this is in Kalina. Kalina. ये कलीना है मुंबई में. सांता क्रूज का जो एरिया है कलीना, ये वहां पर है, याद रख लीजिए. और यहां पर ये गाले जो अभी बने हैं, ये पहले जो यहां पर वार्ड ऑफिसर हुआ करती थी, उन्होंने डिमोलिश भी कर दिए थे, लेकिन ये दोबारा बना लिए गए. और अभी वहां पर कौन लोग हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये शायद गैर कानूनी ढंग से बाहर से आए. पता नहीं, पक्का नहीं. We don't know whether it's really true or not. But they do seem like people who are not from here. They're definitely not from Mumbai. मुंबई या महाराष्ट्र के लोग नहीं हैं, बाहर के लोग हैं. लिहाजा यहां पर ये जो लोग काम कर रहे हैं, इनके पास क्या पेपर्स हैं, इन लेबर लॉज आर दे बीइंग फॉलोड और नॉट, आर दे बीइंग केप्ट इन सेफ कंडीशंस और नॉट. बिकॉज याद रखें, ये लोग यहीं रहते हैं, अपना खाना वाना भी यहीं बनाते हैं, सब कुछ करते हैं. 50 लोग अगर एक तंग बंद जगह में रहेंगे, इट कैन लीड टू अ मेजर फायर हैजर्ड. यहां पर आग लगने का बहुत डर है. याद रखें, अभी हाल ही में कुर्ला में इतनी भीषण आग लग गई थी. Less than 500 meters from there. Yes. So all I'm trying to say is you have to be very, very careful. और ये बात सामने कैसे आई? ये बात सामने तब आई जब वो हमने आपको दिखाया, वो चाय की दुकान जो है, वहां पर लोगों के बीच में जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई कि वहां पर लोग खड़े रहते हैं, चाय पी करके, चाय के बहाने से आते हैं, और वहां छोटी छोटी बच्चियां भी जो बाहर जाती हैं, उनको गाने सुनाते हैं, ना जाने और क्या क्या कुछ करते हैं. Let's take a look at that again. Let's take a look at that tea shop. वो जो चाय की दुकान है, वो क्या है, और उसमें झगड़ा किस बात का है, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं. Let's take a look. ये देखो समस्या, एरिया का समस्या. आप भी एक शांतिपूर्वक एक जनता हो, इस समाज में हर चीज व्यवस्थित होना चाहिए. तो अगर कोई कंप्लेन है कि आपके दुकान के लोग चाय पी के बाहर आके लड़कियों को छेड़ते हैं, तो आपको उसमें कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है. 4-5 कंप्लेन पुलिस में गई. हमने उधर भी कंफर्म कर लिया. आप मेरे खुद के झगड़े हुए लोगों के साथ में यार. ऐसा नहीं मगर हुआ. आप सुधारने की कुछ कोशिश करेंगे. क्या बात कर रहे हो आप? देखो ये सब जो लोग के साथ में मेरे झगड़े नहीं हुए. झगड़े हुए, लेकिन क्यों? अच्छा क्यों? वो मेरे कोई दुश्मन थोड़ी है. तुम्हारे कस्टमर वाली बात है. आप छोटे-छोटे बच्चे जो स्कूल के तुम्हारे कस्टमर मेरे दुश्मन नहीं है भाई साहब. ठीक है. एक मिनट, आपने कौन से कस्टमर को आज तक ये बताओ. एक मिनट रुको, मैं आपको पूरा सुनिए. आपने यहाँ पे आपके पास में किसने समोसा खाया, वड़ा पाव खाया, चाय पिया, बराबर. उसके बाद में वो बंदा इधर बैठा है या खड़ा है, आपने उसको बोला कि भाई अभी तुम्हारा हो गया, चले जाओ. बोलता हूँ, नहीं बोलते आप. बोलता हूँ. अच्छा चलो बोलते हैं. Right. Right. This is how we came to know. प्रदीप जी, बिल्कुल एग्जैक्टली. ये पूरी कहानी जो बाहर आई है, Yes. ये इस चाय की दुकान की वजह से बाहर आई है. सीधी सादी बात है. इस चाय की दुकान के आसपास ये लोग मतलब रहते थे, और इन लोगों ने ये तय कर लिया कि भाई हम लोग जो हैं इसी तरीके से यहाँ पर बिहेव करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ की औरतें, वहाँ के जो मर्द हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो त्रस्त हो गए. और उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो हम चलने नहीं देंगे. और यहाँ पर पुलिस है, पुलिस भी तैनात है. The police has also assured us, by the way, that all illegal immigrants are being identified. All illegal immigrants are being identified, and if found that they don't have the requisite papers, the police of the area have assured us that they will be deported. Pradeep ji. Sir, we talked to the local police, we talked to the local cooperator Rafiq Sheikh. He said that मैंने the incharge जो जिस गारमेंट्स ओनर्स, ये 4-5 गाले हैं वहाँ पर, उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया कि I can't help you where illegal migrants are concerned. जहाँ illegal migrants वाली बात है,
मैं बिल्कुल आपको मदद नहीं करूंगा। ना द होल एरिया इज कंसर्न्ड अबाउट द वे नो रिकॉर्ड। जैसे आप कोई भी हम नॉर्मल सोसाइटी में या बिल्डिंग में कोई फ्लैट रेंटल्स में जब देते हैं तो हमको पुलिस वेरिफिकेशन देना पड़ता है जी। द सोसाइटी हैज टू टेक पुलिस वेरिफिकेशन, द कंसर्न्ड लीजर has to send us the entire documents to the society as well as the police that who is these people, कौन है ये पुलिस के लोग कौन है। I think we've got our friend Zubair Ansari, senior journalist Zubair Ansari, I think is with us. Mr. Ansari, can you hear me? Can you hear me, Mr. Ansari? Not yet. All right, we'll be back with him. So we're talking about that. We'll be back with him shortly. जी प्रदीप जी, आपको सर, बोल देते। नॉर्मल रेसिडेंट्स को हम लोग इवन रेंटल्स पे अगर रेसिडेंशियल एरिया में रखते हैं तो वी आर फोर्स्ड टू इन्फॉर्म द पुलिस। पुलिस को एप्लीकेशन देना पड़ता है, सोसाइटी को एप्लीकेशन देना पड़ता है। यहाँ पर देयर इज नथिंग। गालास में कौन काम कर रहा है किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ से आए कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। कौन से लिविंग स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ वर्क है कोई जानकारी दे। बिकॉज आप देखोगे जब हम लोग गए थे वो शटर डाउन किया था, उस शटर को नीचे डाला गया था, वहां के लोगों ने हमको इशारा दिया कि ये सब बसने वाले उस पर्टिकुलर गाला के अंदर है जी। तो एंड दे आर वर्किंग देयर। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो भी आएंगे आप देखेंगे शटर इज डाउन, वी थिंक देयर इज नो वर्क गोइंग ऑन, बट वहां के 50 people. यस वहां के रेसिडेंट्स जब हमको इन्फॉर्म किए कि आप वहां जाइए, वहां के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एंड वी थॉट इट इज क्लोज, बट जब वहां के लोग वहां खोल दिया उस शटर को, वी वर शॉक्ड टू सी अराउंड 50 people in a line working. Now there are two things. This is inhuman conditions of work. Yes. This कैसे कंडीशंस में लोग काम कर रहे हैं एक बहुत बड़ा चिंताजनक। It's a danger to life and limb. Danger life, yes, and the entire properties across. और जो आपने कहा कि सवेरे रिमाइंड किए कि कुर्ला में कल ही एक भयानक आग लगी थी, उसका आग यानी द होल एरिया वाज डिस्टर्ब्ड, आने जाने जो ट्रैफिक है टोटली डिस्टर्ब हुआ था, everything in that particular area, and this particular place is just about 500 meters from that particular area. So if you got the responsibility of the administration, the BMC, the Labour Commissioner, and the fire department, you have to come and check it. I think what I think we might have our senior journalist Zubair Ansari with us right now. Mr. Ansari, can you hear me? I think we've got him. We've got his visual, but I'm not sure if he can hear us. I'm not sure if he can hear us. Zubair ji, आपको मेरी आवाज आ रही है? I don't think so. I think his visual is also frozen. जी. So this is a big challenge. This is a big challenge to our administration. Now, the security aspect. Because who are these illegal migrants? From where do they come from? Yes, if what they are are, their intentions? if they are indeed illegal immigrants. Sir, we're not sure. if there is a whole area is complaining, the residential area is complaining about this, yes, and the people in the neighborhood are saying that these people are probably not from here, not from this country also, something has to be investigated. Now, investigation begins from where the complaint comes. The complaint is already before you. Number one, the people of the entire residential area are agitated by the number of people working out there who are not locals, who are out from outside. They believe not from this country too. That's right. Now they are working in inhuman conditions. The working condition is awful. One particular gala, उसमें 50 से 100 लोग एक साथ काम कर रहे हैं. They are staying there only. They are staying. So their sanitation, their way of work, their breath conditions, absolutely terrible. The light, the air, that is one thing. And then what happens if it catches fire? I tell you what, let's take a look again at what's been happening in the area. उस एरिया का मतलब कुछ और झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगा. Let's take a look. Let's take a look at what's been happening in that particular area. Senior journalist Zubair Ansari, who is supposed to be with us, somehow or the other we are not able to get him in range, but we will be able to get him very shortly. But let's take a look at what's been happening in that particular area. Can we have that on, please? इधर ही रहते हैं हम लोग. तो आप बाहर जब आते हो, ये बगल से जो लेडीज आते हैं, उनको तकलीफ हो रहा है. उनको तकलीफ हो रहा है कि आप लोग छेड़ रहे हैं, कोई गंदा गाना गा रहा है, कोई बदमाशी गाना, कोई छेड़खानी की बातें कर रहे हैं. ऐसा कभी किया है आप लोगों ने? ऐसा करना भी नहीं. मालूम है क्यों मैं यहाँ पे धमकी नहीं देकर गई थी कि नेक्स्ट टाइम उन लोगों को बोला अगर किसी लड़की के साथ में छेड़खानी किया ना तो मैं अंदर घुस के मारूंगी. यही बात बोलकर गई थी यहाँ पे. कितना दिन पहले? 4-5
महीना पहले, तो हम लोग उस टाइम नहीं 4-5 महीना हाँ, पहले, वो पूरे ग्रुप चले गए, 4-5 महीना पहले। नए ग्रुप आ गए। नहीं, कोई ग्रुप नहीं, यही पुराना ग्रुप दिखा दो कौन सा लड़का इधर, नहीं तो सबको तो है। खाली वो लड़का इन लोग ने यहाँ से भगा दिया। अब ये यहाँ पर है नहीं, ये इनका जो वो गायब कर दिया, उसको गायब क्या कर दिया। बताएंगे हम लोग? गनी भाई गनी भाई, उस्मान गनी भाई। अच्छा, तो उनसे जरा संपर्क कीजिए, हम लोग उनका इंटरव्यू करना चाहेंगे। उनका आगे भी है हाँ दीजिए ना। फोन नंबर बता दो गनी राइट। नंबर 1 एब्सोल्युटली एसेंशियल। अभी आप लोग करते क्या हो यहाँ पर? गारमेंट्स बनाते हो और एक्सपोर्ट करते हो उसको, एक्सपोर्ट लेकिन वगैरह। एक चीज याद रख लीजिए, हमारी सलाह आपसे यही होगी कि आगे से ऐसा मत करिए। अगर होता भी है कोई, उस बंदे को आप यहाँ से निकाल दीजिए और दफा कर दीजिए, समझ गए? यहाँ पर भाईचारे से रहिएगा। सब लोग शरीफ लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन शरीफ लोगों का जब दिमाग आउट हो जाता है ना, तो उसके बाद गड़बड़ हो जाती है। आप समझ गए? हाँ, बोले बोले। Right, as far as this particular case is concerned, and by the way, in both the campaigns, ये नेशन नाउ की कैंपेन है, याद रख लीजिए। भले वो गोरेगांव का मामला हो या वो योगी आश्रम का मामला हो, दोनों जगह पर जहां हमने कैंपेन लॉन्च करी है, ये कैंपेन हमारी, ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। प्रदीप जी और मैं आपसे वादा करते हैं that we are not going to give this up, because we will take it towards logical conclusion, because this is not done, what is happening is not done. याद रखें, नेशन नाउ आम चैनल नहीं है साहब, हम सिर्फ समस्याएं दिखाते नहीं हैं, हम समस्याओं का समाधान भी आपके सामने लाते हैं। wherever possible we come out with solutions to people's problems. That's, I think, what the traditional job of a channel ought to be. That's what we are trying to do. From both Pradeep ji and myself, that's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. आज के Nation Now में सिर्फ इतना ही. By the way, before we go, we must request you, वो जो subscribe button आपको दिख रहा है ना वहाँ पे, उसको जरा आप click करें. Number 2, if you feel like making a comment, please do send your comments in the comments section of this particular video. As far as we are concerned, we'll of course be back with you tomorrow. और कल भी एक नए आंदोलन के साथ हम लोग होंगे आपके सामने। From both Advocate Pradeep Nambiar ji and myself, आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। वंदे मातरम।